So, hello and good morning, students. So today we have discussed on this video brief history of MySQL. Let's start the MySQL and SQL structure query language. जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 11 रिलेशनल डेटाबेस पार्ट 2 के अंदर हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं. एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले हम MySQL के बारे में, उसके बाद SQL के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं SQL पर, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस MySQL is a freely available open source relational database management system. मतलब जो MySQL है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप सब जानते हैं. ओपन सोर्स का मतलब ही होता है कि कहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS दैट यूजेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ये किस पे यूज होता है या किस तरीके से यूज होता है. एक स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज होती हैं आपकी, और लैंग्वेज है किस तरीके की, स्ट्रक्चर. इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट दिस www.mysql.org. in a MySQL database information is stored in table. MySQL database में information जो स्टोर होती है वो कैसे होती है, टेबल के फॉर्म में. A single MySQL database can contain many tables. एक single database MySQL database जो है वो contain करता है many tables at one and store thousands of individual records. स्टोर करता है thousands of individual records को. MySQL provide you with a rich set of features. जो MySQL है वो provide करता है rich set of features that support a secure environment, जो आपको प्रोवाइड करता है एक सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा. डेटा को स्टोर करना, उसे मेंटेन करना और एक्सेसिंग करना. MySQL इज अ फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल अल्टरनेटिव टू मैनी ऑफ द कॉमर्शियल RDBMS अवेलेबल टुडे. ठीक है, MySQL क्या है, एक आसान अल्टरनेट आपके पास क्या है, कॉमर्शियल डेटाबेस सिस्टम जो है अवेलेबल है आज के टाइम पर. सो ये आपकी एक जनरल ब्रीफ हिस्ट्री हो गई MySQL की. आगे देखते हैं इसमें क्या है. MySQL was created and is supported by MySQL AB. ठीक, a company based is Sweden से बेस्ड कंपनी है. This company is now a subsidiary of Sun Microsystem, which hold the copyright to most of the code base on April 20th 2009. Oracle Corporation को इसके जो क्या मिले हैं, कॉपीराइट्स मिले हैं. ठीक, which develops and sell the property Oracle database, announced a deal to acquire Sun Microsystem. ठीक, the chief inventor of MySQL was Michael Widnes, aka Monty. MySQL has been named after Monty's daughter Mai. The logo of MySQL, the dolphin, is named as Sakila. ठीक, ये इसका जनरल एक फिनोमिना है, जनरल एक हिस्ट्री है. सो आगे देखते हैं MySQL डेटाबेस सिस्टम है क्या. द की रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम होता है. A database server is the key to solving the problem of information management. In general, a server must reliably manage a large amount of data in a multi-user environment so that many users can concurrently access the same data. A database server must also prevent unauthorized access and provide efficient solution for failure recovery. MySQL database system refer to the combination of MySQL server instance and a MySQL database. MySQL operates using client-server architecture in which the server runs on the machine containing the database and clients connect to the server over a network. Database और client कैसे connect होते हैं, server के through over a network. The server operating system is usually a Linux like Red Hat 9.0 etc. or Windows operating system. Typically MySQL is supported on Windows XP, Windows Server 2003, Red Hat, Fedora Linux and Debian Linux and others.
As with any other client-server application, MySQL is a multi-user database system, meaning several users can access the database simultaneously. Here the server, MySQL server, client, ये सब आप जानते ही हैं, my server क्या होता है, client क्या होता है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं. Listen to client request coming in over the network and access database contents according to those requests and provides that to the client. अब क्लाइंट क्या है? सर्वर जहां से आपको डेटा मिलता है. क्लाइंट हम लोग होते हैं. क्लाइंट जैसे जो यूज करते हैं. क्लाइंट आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इशू क्वेरी इन अ प्री स्पेसिफिक फॉर्मेट. MySQL is compatible with the standard based SQL structure query language. Standard based, ठीक है. The client program may contact the server programmatically, meaning a program call the server during execution, ठीक है, or manually. For example, when you are issuing commands over a season to a MySQL server, you are issuing the request to the server by typing commands at your command prompt manually. On the other hand, if you have input some data, say your credit card information on the internet towards purchase of some goods in a form, and the form of proceed by using a server side program, then the MySQL server is contact programmatically. This is often the case in credit card approvals, members, subscription, etc. क्लाइंट मतलब आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर होती है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, क्या आप परचेज कर रहे हैं, क्या आप सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक डेटाबेस में स्टोर होती हैं हर जगह पर. वो MySQL के थ्रू या किसी भी कंपनी के किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज किया जाता है. वो सर्वर पर होता है. क्लाइंट हम सब होते हैं. जैसे कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उन सब पर काम होता है. कुछ इश्यूज होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है. उसके बाद देन MySQL सर्वर इज कंडक्टेड प्रोग्रामेटिकली. कंडक्ट होता है प्रोग्राम के डिपेंडेंट. वो अप्रूवल्स करता है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन करता है, ठीक है. क्लाइंट प्रोग्राम में कॉन्टेक्ट द सेवरल प्रोग्रामेटिकली. ये सारी चीजें क्लाइंट पर डिपेंड करती हैं. सम द अदर की फीचर्स ऑफ SQL इज स्पीड, इजी टू यूज, बहुत आसानी से यूज होता है. कॉस्ट इस पर कोई खास नहीं आती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. स्पीड जो है उसकी उतनी ज्यादा भी नहीं है तो उतनी कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम के नाते, एक डेटाबेस के नाते इसकी स्पीड अच्छी है, जैसा इस पर डेटाबेस तैयार किया जाता है. सो स्पीड, इफ द सर्वर हार्डवेयर इज ऑप्टिमल, सर्वर में कोई अलग अलग से हार्डवेयर की नीड नहीं होती. MySQL रन वेरी फास्ट, काफी तेज रन करता है. इट्स सपोर्ट क्लस्टर्ड सर्वर फ्रॉम डिमांडिंग एप्लीकेशन, जो भी डिमांडिंग एप्लीकेशन होती है. इजी टू यूज, MySQL is high performance, relatively simply database system from the beginning. MySQL has typically been configured, monitored, and managed from the command line. However, several MySQL graphics interfaces are also available. Cost, MySQL available is free of cost. MySQL is a open source database, जैसा कि आपको बताया, हर जगह पर चल जाता है. Linux पे भी चलेगा, Apache पे भी चलेगा, PHP पे भी चलेगा, Python के साथ भी चलेगा. पाइथन के साथ कनेक्टिविटी इसकी हम पढ़ते हैं. आगे देखते हैं. क्वेरी लैंग्वेज है, ये एक तरीके की क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट है. MySQL अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड बेस्ड SQL, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक. पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी यानी कि आसानी से चल जाता है. MySQL प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी एट इट हैज बीन टेस्टेड विद अ broad रेंज ऑफ डिफरेंट कंपाइलर्स, यानी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स, एंड कैन वर्क द मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलता है. मतलब कभी विंडो XP पर भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 7 पे भी चलेगा, सब पे. इट इज फुली मल्टी थ्रेडेड यूजिंग कर्नल थ्रेड्स. इट कैन इजीली यूज मल्टीपल CPU. दे आर अवेलेबल. डेटा टाइप्स, MySQL प्रोवाइड मेनी डेटा टाइप्स ऑफ सपोर्ट. बहुत तरीके के डेटा टाइप सपोर्ट करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लेता है. इट ऑल्सो सपोर्ट फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड. फिक्स्ड लेंथ के भी और वेरिएबल लेंथ. सिक्योरिटी भी पूरी प्रोवाइड करता है आपको. MySQL ऑफर अ प्रिविलेज ऑफ पासवर्ड सिस्टम दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर and that allow host based verification. Password are secure because all password traffic is encrypted when you connect it to the server, ठीक है. स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स भी है. 50 मिलियन रिकॉर्ड्स की कंटेन करने की. सो हम 60,000 टेबल्स
एंड अबाउट 5 करोड़ रोज की इसकी जो है लार्जेस्ट लिमिट है। कनेक्टिविटी अच्छी है सर्वर्स के साथ, सेवरल प्रोटोकॉल्स के साथ, लोकलाइजेशन अच्छा है, प्रोवाइड एरर्स मैसेज एंड क्लाइंट टू मेनी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस में। उसके बाद क्लाइंट्स एंड टूल्स भी इसके प्रॉपर है। सो लेट्स स्टार्ट द माई एसक्यूएल। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करना आना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट पर हम टेबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग माई एसक्यूएल। सो स्टार्टिंग माई एसक्यूएल जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रोग्राम्स माई एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप इस तरीके की विंडो पर आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। इट विल स्टार्ट द माई एसक्यूएल क्लाइंट वेयर यू हैव टू स्पेसिफाई द पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, ये देखिए एंटर करेंगे आप पासवर्ड। उसके बाद जैसे ही आप इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो पासवर्ड डिमांड कर, सो देन यू हैव रिक्वायर्ड अ पासवर्ड, सो एंटर पासवर्ड 3 or 4 or 5 डिजिट जो भी है। आस्क योर टीचर अबाउट द पासवर्ड इन द MySQL इंस्टॉलेशन ऑन योर लैब। जब भी इंस्टॉल होगा तब भी पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद आपसे कहेगा वेलकम टू द MySQL मॉनिटर कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही आप MySQL में आएंगे तो यहाँ से आपको क्विट करना पड़ेगा, बाहर जाना है। उसके लिए देखिए MySQL के अंदर आ गया, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट MySQL के अंदर आएंगे। नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन MySQL। when you are through with your work you can quit from MySQL by type quit with the MySQL prompt। ये यहाँ से जब आपका काम हो जाए तो आप क्विट करके MySQL से बाहर जा सकते हैं। अब देखिए MySQL और SQL में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। My एक नाम जुड़ा हुआ है और SQL आप जानते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी। अभी इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं वो बेसिक ही MySQL के बारे में देख रहे हैं। MySQL SQL क्या है। आगे के जो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम क्वेरीज बनाएंगे, तब हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन अ MySQL डेटाबेस ऑल प्रोग्राम्स एंड यूजर्स मस्ट यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड्स। इसमें कमांड्स का कुछ सेट है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नियर बाय द ऑल RDBMS, ठीक है। Uses of SQL has become a standard for most of RDBMS through application programs, and MySQL tools often allow users to access database without directly using SQL. But these applications in turn must use SQL when executing the user's request. The structure query language SQL is language that enable you to create and operate the relational database। जो SQL है, जो लैंग्वेज है, वो enable करती है आपको create and operate the relational database, which are set of related information stored in tables. The database world is becoming increasing integrated, and this led to a clamor for the standard language that can be used to operate in many different kinds of computer environment. The SQL structure query language has proved to be a standard language at its allow standard language that can be used to operate in many different kinds of computer environment. The SQL structure query language has proved to be a structure language that is allow user to learn one set of command and use it to create, retrieve, alter and transfer informations regardless of whether they are working on a PC, a workstation, a mini और a mainframe। ठीक है, ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है MySQL की और SQL के बारे में। There are numerous version of SQL. The original version of developed by IBM, St. John's Research Laboratory, now the Elementary Research Centers। ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज क्या है SQL की, किस तरीके से प्रोसेस करता है। द SQL हैज प्रूव्ड टू बी अ लैंग्वेज, उन्होंने ये प्रूव किया है एक लैंग्वेज के तौर पर, दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ कॉल्स यूजर्स एज वेल एज स्किल्ड प्रोग्रामर्स। यानी कि किसके लिए है, दोनों के लिए, कॉजेज यूजर्स एज वेल एज स्किल्ड प्रोग्रामर्स के लिए, जो स्टार्टर है और जो स्किल्ड प्रोग्रामर्स है उनके लिए वो एक प्रॉपर लैंग्वेज है। इट ऑफर्स a variety of processing capabilities, ये ऑफर करती है variety of processing, simpler ones of which may be used by the former and the more complex by the latter class of users. The various processing capabilities of SQLs are: first is data definition language, this is the DDL language। इसमें 4 या 5 तरीके की लैंग्वेज हैं ये, DDL, TCL, DML। So first is data definition language, डेटा को डिफाइन करने वाली। The SQL
DDL provides यानी कि data definition language provide command for defining relation schemes, deleting relations, create index and modify relation schemes. ये डेटा डिफाइन लैंग्वेज के पार्ट में आता है. जो SQL है DDL प्रोवाइड करता है आपको कमांड फॉर डिफाइनिंग रिलेशनल स्कीम्स, डिलीटिंग रिलेशन, क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाई रिलेशंस, और रिलेशंस को मॉडिफाई करने के. सेकंड पार्ट इज इंटरेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इंटरेक्टिव मतलब आप समझते हैं इंटरेक्ट, जो इंटरेक्ट करने वाला डेटा होता है, एंड मैनिपुलेट करने का काम जो होता है लैंग्वेज के साथ. द SQL DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे कि आपको बताया था DDL हो गया, अब कौन सा है DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. द SQL DML include a query language based on both a relational algebra and the tuples relations calculus. ठीक. It include also command to insert, delete and modify. वहां भी insert, delete and modify था. ठीक है, यहाँ भी insert, delete and modify से tuples in the database, tuples के अंदर database. Next is embedded data manipulation language, EDML, embedded data manipulation language. The embedded from a SQL is designed for use within a general purpose programming language. किसमें? एक general purpose programming language में, such as a PL1, COBOL, Fortran, Pascal and C and C++, etc. ठीक. नेक्स्ट है व्यू डेफिनेशन. द SQL DDL also include command for defining views. नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन, ऑथराइज करना. द SQL DDL include command is specify access right to relation and views. Next is integrity. The SQL provide limited forms of integrity checking. Features, products and standard of SQL are likely to include enhanced features of integrity checking. And last, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल. जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सबका कंट्रोल. SQL include commands or specify the beginning and ending of transaction along with commands to have a control over transaction process. तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, MySQL क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, डेटाबेस में क्या चीजें होती हैं, क्लाइंट सर्वर क्या होता है. तो आज की इस क्लास में इतना ही काफी है. अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे. उसके बाद हम DDML के इसके कुछ क्लासिफिकेशन, फिर DDL कमांड्स, DML कमांड एंड TCL कमांड्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स.